So today we are going to cover, as you already know from the program schedule, that we are going to cover some advanced features, or it's just additional features, extra features. People call it advanced features also, but all features are useful, whether basic or advanced. So some advanced features of Google Classroom, most of the things which were covered are also there, but some other things which were not covered due to paucity of time will be taken up. And since Google provides lot of other packages and other apps that can be used for online teaching learning, so we will also be covering some other Google tools like Google Doc, Google Form, Google Sheets, and we will, if we get time, then we can also have a bit of Google Meet today. Otherwise we will definitely have Google Meet tomorrow. So Anupam sir, I saw the presentation and the video. He has already given you entire introduction about Google Classroom, so I will not be repeating the same things. I will be skipping these parts. These you are already now aware, and this is a difference between G Suite account, as sir pointed out yesterday, and a personal Google account. So there is some capacity limitation if you log in with your personal Gmail account, otherwise, or versus you use Google Suite account. So we will also see there are also some features which are available in Google Suite account but not available in personal Google account, personal Gmail accounts. So you can see there are some limitations on numbers and other things if you use a personal domain, personal Gmail account versus Google Suite account. But a very important thing also, dear teachers, keep in mind that one important thing you need to consider is that if you are using Google Suite account, institutional Gmail account, yeah, institutional Google account, then you have to have your class attendees or participants or team members on various platforms, as they name it, also as also they have to join from the same institutional email account. So in an institution like Delhi University, where we have lakhs of students, it may be easier, and it has been done to a lot extent, that we have been able to provide all the teachers with institutional email IDs in most of the colleges and institutions of DU. But we also have to take up a Herculean task of providing each student with a institutional address, because then only they will be able to join your Google class, which has been created by a institutional ID. So please also keep this ground reality in mind, whether students have that personal account or institutional account yet or not, and proceed accordingly. So again, these things were already, I think, done yesterday. So introduction of all the tabs and all the things are also showed, some assignment types, and creating and grading them. So let me work now today on some specific and advanced features. So first of all, I would like to dwell a bit more in rubrics. I know sir has already introduced it yesterday, but let me also dig deeper into rubrics and also show you some more things that are there, like importing and exporting and using already generated rubrics. Then comments also. Sir talked about private comments yesterday, but let me also dwell upon comments bank and using previous comments. Again, quiz was also introduced yesterday. So in a way, the platform is set, but we will also look at what other things can be done. Then one, very interesting and very important query that many teachers have asked in my previous workshops on ICT tools and Google Classroom is that how we can conduct a time test, because you know that in the physical world, offline world, all your tests and all your projects were timed.
So 1 hour, half an hour, 2 hours, 3 hours exams. So can there be some innovation through which we can conduct any assessment, whether assignment or whether a Google quiz in a time bound manner? So we will see that. Then there is also one innovation. So these two things, time test and group projects, are not directly available as a command or as a icon or as a extension in Google Classroom. We have to innovate to learn how to apply them. So another innovation is how to assign group projects. So you would remember, I just before just starting the session, I was browsing through and I saw that Satyavati College is so rich and so diverse in terms of courses and departments. So, and there are a lot of humanities department and language courses also. So there are more, group projects, assignments which students will do in teamwork and collaboration. So how we can enable that? How we can enable group projects, group assignments in a Google Classroom environment? Then, as Sir illustrated very well yesterday, that individual grades, Sir showed to how to assign and compute individual grades and return the graded assignment to students. We will now also see that how we can get the overall grade. So there are two ways: total point based or weighted grades. So it is basically summing up everything, which is total point based, or it is taking weighted average, which is weighted by category method. Then we will also look into some aspects of class management. For example, switching between classes, what is the purpose of archiving a class, and how do we archive and restore a class? Why do we need to copy a class and how do we do it? Deleting a class. So because something you are creating, so it must also be deletable. So we will also look into these aspects. Then we will also look into class code. So you all are aware now that there is a class code which you can share with your students and they can join through that. But what is the purpose of resetting, disable, enable, and what how to do it? Then also notification settings, because I will take you through this also, because if you immediately start Google Classroom, then and you start adding up students and having students on your class, and they start writing some comments, hello, hi, and you also post some assignment, then you get a lot of mail. So we are already burdened by number of emails that we receive. We are you are just waiting for flood gates to open when you launch a Google Classroom with a lot of students. So we will also look into notification settings, that how we can choose and restrict as to what, for what reasons and when should we, if at all, receive emails from Google Classroom. Also, there are some things like originality report, to do tasks, integration with Google Map. So originality report, integration with Google Map, Google Meet, and also grade importing are features which are available in Enterprise Edition, Google Suite it is called. So we will see some of these to whatever extent I am using again my college domain. I will be using to check these. So I'm not sure how much I will be, it will be there, but I think to whatever extent it will be there, you will be clear with it. Then also, Sir pointed yesterday that tomorrow, for today, that we will be doing reusing post, reusing classwork. So this is the broad topic of reusing contents, whether posts or classwork. So we will see, because you don't have to type in the same things again and again. So for example, yesterday Sir very well illustrated how in the same post introduction to pollution he added several things, web link and YouTube. And so as teachers we make such efforts one time, so we should be able to reuse those things. So reusing whether classwork or any post that you have done should be available.
So these are the things that we will be covering in Google Classroom in advanced features, and then I will also be taking up your queries from chat and any suggestions regarding any additional thing or anything else which is not covered today or yesterday. We can take it up, and then I will quickly take you through Google Forms, Google Docs, and Google Sheets. So there are several things in these, but I think we will be able to cover. So this is the outline for today. So now without further ado, so let me just check the chats if there are any queries. Okay, so there are no more specific queries regarding any topic. So let me proceed with the outline that I showed now. So coming to Google Classroom, so you have already done a lot of things yesterday. So let me take you through it. Sir has already covered, you are already familiar. So let me directly get started with some of the features. So not in any particular order or something, we will just cover those things and then also take up your queries and suggestions regarding anything further to be done. So first thing, I would like to start in the reverse order. So I think the screen is visible. The screen is shared, the Google Chrome window. So you can see that. Can you maximize the screen? Okay, sir. Yeah, now it's good. Okay. So, for example, I had archived these classes, but this FDP came and so I have retrieved these classes just to show some of the features. So you can see that there are several classes which we all teach, and we normally have 2 to 4 papers or 5 papers. I was also running a special diploma course on financial modeling, so that is there. But otherwise, there are some 2 to 4 classes that we normally teach. So you must be aware that once you log in from your Gmail and you go to your Google Classroom icon, all this you have done, you will be able to see these classes. Now, for example, let me begin with few things. So, for example, the semester has ended. As we all know, the new academic session and the odd semester has started of the new academic session 2020 and 2020 to 2021. So these are classes of even semester 2, 4, 6. So I want to archive them because it will get overcrowded here. And I also do not want students to access contents any further because the class is done, the exams are done or are in the process of being done. So things are over. So I have to remove them from here. But please understand there is a difference between removal and deletion. Or I would rather use the word, instead of removal, I would use the word hiding. So I want to hide the classes which I have already taught in the previous semester. I want them to be hidden, and I want them to be hidden, not deleted. Not deleted because I want them to be retrievable. I want to get them back again in January when we start the next event semester. But till then, I want them to be hidden so that my this interface, my this window is free and is there, uh, accessible for new classes that are going to come up. Also, as I told, I don't want students to be still accessing the content and posts for these classes because these are done. So many of the teachers also delete WhatsApp groups with students after the semester is over. So how do we do all these things? So in the class window, in the home screen of Google Classroom, for each class, you will see these 3 dots.
three dots or epsilon. There's some of them, sometimes they are called. So you can see, you can move them. So moving them will only change its positioning, edit, copy. I will be coming directly to archive. So the moment I click on archive, you can see the archive classes will not be updated and students will not be able to access the contents, but nothing will be deleted. All the files, all the content, including student projects, will remain there in your Google Drive. So sir also showed you Google Drive and told you about Google Drive, and there is a folder for each class in Google Drive. So it will be there. Nothing will be deleted, but we just want it to be removed from here and hidden. So we can click on archive. We can click on archive and you will see that it says archiving and the class is gone from here. So where is it gone? So click on these three icons here, which is for the main menu, and you go to archived classes. You can see archived classes, and you can see I had also another paper which I had archived. So this is archived class. Now when the next even semester will start in January, and often we repeat our papers, we teach same papers year after year. So we will be retrieving this. So how do we retrieve it? So again, you click on these three epsilon, and now you can see instead of archive, you can see the button icon of restore. So if you click on restore, you can see that the class will now be shown in classes, and you and your students will be able to interact. So you can see it is back here. This BMS semester 6 international finance classes back here. So this is how we hide our classes, by archiving them for the time being, for the remaining of this semester, and then again get it back for the next semester. Now when we archive the classes, so let me again archive this. Now I have archived it. Now I don't want to, what I want is that for the next semester, I want the entire content to be there, but I do not want students to be there, same students and their interaction and chats and comments and their grading. Why so? Because the reason you would easily understand, because you would know that for each year we have a new batch. So whichever semester or course we are teaching, if we are teaching final year semester 6 students, so we will have a new batch of semester 6 students. So I want to repeat my entire content from the last year, content which I taught last year, assignments or quizzes which I gave last year, but I do not want the students, or maybe many a times teachers also teach papers on a sharing basis, or there are also guest faculties which could be added as co-teachers, as sir illustrated yesterday or told yesterday. But again, we do not also want our co-teachers to be added, because maybe they are not continuing in this semester this year. So what do we do? So first thing that you have to do, you can create a copy here also. So let me show. So this, by default, the name comes, see, you can see the copy of Word by default gets added before whatever is the name of your class. So copy of Word gets added, and you can click on create a copy. So you had archived your class, and this will happen again. So this will also happen for odd semester. Some of you who were earlier also using Google Classroom might be actually doing this and retrieving your classes from archive, in which you may have sent at the end of last odd semester. So a copy has been created, and a copy of this class, let me check where it is.
Okay, let me first restore it. Yes, so हम लोग अब देख सकते हैं, मैं दोनों लैंग्वेजेस में ट्राई करूंगा कम्युनिकेट करने की। सो हम लोग अब देख सकते हैं कि वी हैव क्रिएटेड अ कॉपी, we have created a copy of BMS SEM6 International Finance. So we can archive the original one again. There is no need for the original one. We can go ahead with the copy version. So this is the copy version. So let me open it. So what we wanted, हम चाहते थे इस copy में that we do not have students of last year. There should not be students of last year. So you can see that even though there were 25 students in our previous class, but आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अब कोई बच्चे नहीं है। जो कॉपी वर्जन है, कॉपी वर्जन जो है क्लास की, इसमें कोई बच्चे नहीं है। जो भी 25 बच्चे हमारे पिछले क्लास में थे वो सारे ही हट चुके हैं। अगर कोई को टीचर होता तो वो उसको हम अगेन रिमूव कर सकते थे, या वो ऑलरेडी कॉपी वर्जन में रिमूव हो जाएगा। अगर वो रिमूव नहीं हुआ है तो आप रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज कॉपीड वर्जन में टीचर्स भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा एक काम तो हो गया, सारे बच्चे और कोई भी को टीचर नहीं है। अगर वो सेम टीचर कंटिन्यू कर रहा है तो आप अगेन इनवाइट टीचर्स पे क्लिक करके यहाँ पे उस टीचर का नेम अगर वो ऑलरेडी है गूगल पे, पर नेम से आइडेंटिफाई करना मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं। सो बेटर आप उनका ईमेल आईडी टाइप करके अपने कलीग को इनविटेशन भेज सकते हैं एंड दे कैन ज्वाइन एज को टीचर फॉर दिस क्लास। फिर हम लोग बच्चे ही नहीं है तो आप देख सकते हैं बच्चे ही नहीं है तो ग्रेड्स भी नहीं है, तो पिछले साल का सारा ग्रेड्स और स्टूडेंट्स सारा डेटा हट चुका है। तो क्लास वर्क इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि क्लास वर्क आपके पास है पर क्लास वर्क पोस्टेड नहीं है। क्लास वर्क आपका सारा का सारा ड्राफ्ट के फॉर्म में है, ड्राफ्ट के फॉर्म में है जी। मतलब आप उसे अप्रूव करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि कब उसे पोस्ट करना है। पर ये देखिए कितने अच्छी फीचर है इसकी कि आपका सारा कंटेंट इंक्लूडिंग द फाइल्स, वीडियोस या जो भी मटेरियल आपने डाला होगा यूनिट वाइज। फॉर एग्जांपल there were 4 units in this semester and in this course and I had created 4 topics। जैसा सर ने आपको कल टॉपिक्स क्रिएट करना बताया था, मैंने 4 यूनिट वाइज टॉपिक्स क्रिएट किए थे और हर यूनिट का स्टडी मटेरियल ऐसे डाला था। पर यहाँ पे कुछ भी पोस्टेड नहीं है और ऐसा ही होना भी चाहिए क्योंकि आप शुरू में ही तो पूरे साल का, पूरे सेमेस्टर का सारा यूनिट्स पोस्ट नहीं करेंगे। सो व्हाट वी कैन सी दैट फॉर एग्जांपल अब हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं और यूनिट 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट्स पे अगर क्लिक करें यूनिट 1 स्टडी मटेरियल तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगेन ये वाला फैमिलियर विंडो, आप ऑलरेडी इस विंडो को कल सर ने काफ़ी समझाया था तो आप इस विंडो को जानते हैं। इसमें मैंने कुछ पीडीएफ अटैच किया है, आप कुछ वेब लिंक, यूट्यूब या कुछ और चीज़ आप डाल सकते हैं और आप अगेन ये देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को देना है या किसे देना है। अभी इसमें कोई स्टूडेंट एडेड नहीं है और आप इसे अगेन पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप स्केड्यूल कर सकते हैं बाद में पोस्ट करने के लिए। तो टीचर्स मुझे स्केड्यूल का ऑप्शन भी बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है। इसका रीज़न है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट वीक नहीं अवेलेबल रहेंगे या नेक्स्ट वीक आप बिजी हैं किसी प्रोग्राम में या किसी और चीज़ में और आपको याद नहीं रहेगा या फिर आपके पास ये पूरे सिस्टम का एक्सेस नहीं है। हालांकि आप ये चीज़ें मोबाइल से भी कर सकते हैं, पर फिर भी आपके पास अगर एक्सेस नहीं है या फिर आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं किसी चीज़ में तो आप आराम से ये इस चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो हम लोग ये इजीली शेड्यूल कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2021 का 4 जनवरी मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो सकता है, तो 4 जनवरी 2021 का शेड्यूल कर दूंगा आज ही, इतने मंथ्स एडवांस में।
तो 4 जनवरी 2021 को जब ये सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारा उस दिन बिना हमारे कुछ किए ऑटोमेटिकली हमारा यूनिट 1 का मटेरियल पोस्ट हो जाएगा। फिर यूनिट 2 के मटेरियल के लिए हम फरवरी के बिगनिंग में कर सकते हैं, यूनिट 3 को मार्च में कर सकते हैं, यूनिट 4 को हम अप्रैल में कर सकते हैं। स्केड्यूल करके डेट और टाइम हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, उस दिन ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं अगर, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पोस्ट ही कर सकते हैं, आप इसमें चाहें तो सब कुछ एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्रॉस का आइकन देख रहे हैं, आप यहाँ पे क्रॉस करके, जैसे हम लोग हर साल एज टीचर्स हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग नई चीजें सीखते हैं, नई चीजें डिलीवर करना चाहते हैं, नई चीजें ऐड करते हैं, तो अपने नॉलेज में भी और बच्चों के साथ शेयर करने के लिए भी नए आर्टिकल्स, नए रिसोर्सेज, तो आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। अगेन ऐड के वही ऑप्शंस हैं जो सर ने आपको कल करके एक एक सारे ऑप्शंस करके आपको दिखाए, तो वही ऑप्शंस हैं ऐड करने के लिए। आप लास्ट ईयर वाला रिमूव करना चाहते हैं, कुछ नया मटेरियल डालना चाहते हैं इसकी जगह, तो इसे क्रॉस पे क्लिक करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द टाइटल आप कुछ और डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 स्टडी मटेरियल के बदले मैं सर की तरह आज ये डालना चाहता हूँ यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ऐसा करके डालना चाहता हूँ तो मैं वैसा डाल सकता हूँ टॉपिक, और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं और अगेन इसे हम कोई और टॉपिक असाइन कर सकते हैं। तो टीचर्स ये हुआ रीयूजिंग कंटेंट। ये रीयूजिंग कंटेंट की बात हमने इसमें देखी कि आप कैसे लास्ट ईयर का कंटेंट, सेमेस्टर खत्म हुआ, आपने क्लास को आर्काइव कर दिया, फिर आप आर्काइव क्लास का एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी को आप इस साल डाल दीजिए। इस साल वापस यहाँ पे फ्रेश विंडो में ले आइए और यहाँ पे आप उसमें देखेंगे कि आपके पास फिर से बच्चे ऐड करने का ऑप्शन होगा। बच्चों को ये लिंक दे दीजिए क्लास कोड ज्वाइन करने के लिए, या इनवाइट कर सकते हैं, अगेन टीचर्स को इनवाइट कर सकते हैं। ग्रेड बुक आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होगी, जैसे जैसे बच्चे ऐड होंगे वैसे वैसे ग्रेड बुक में ऑप्शंस आपके आते जाएंगे। बच्चे ऐड होंगे और जैसा जैसा सर ने कल भी आपको दिखाया, जैसे जैसे सर एक एक करके असाइनमेंट क्रिएट करते जा रहे थे, असाइनमेंट या क्विज असाइनमेंट, वैसे ही ग्रेड्स में ऑप्शंस आते जा रहे थे। असाइनमेंट में स्कोर बच्चों का, क्विज असाइनमेंट में स्कोर, तो वो सारा ऑप्शंस आता जा रहा था। तो वो सब नेचुरली आता जाएगा इस सेमेस्टर में, जैसे जैसे आप बच्चे ऐड करेंगे और जैसे जैसे आप कोई असाइनमेंट या चीजें देते जाएंगे। तो एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल फ्रेश पढ़ा रहे हैं, पर इसमें आपका एफर्ट बिल्कुल ही मिनिमल है, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना है, सारी चीजें आपके पास रेडी हैं। इंटरनल असेसमेंट तक आप देख सकते हैं कॉपी हो गया है, ये कोई मटेरियल नहीं था, ये इंटरनल असेसमेंट था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जो भी आप इंस्ट्रक्शन देके लास्ट अप्रैल 19 तक मैंने सबमिट करने के लिए कुछ बोला था 25 मार्क्स का, और ये भी अगेन आपके पास पूरा का पूरा असाइनमेंट है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं, नया टॉपिक दे सकते हैं, नया असाइनमेंट दे सकते हैं, नए इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और सारी चीजें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी क्लास का हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे पास। अब आपको ये कॉपी ऑफ BMS सेम6 इंटरनेशनल फाइनेंस 2020 वर्ड अच्छा नहीं लग रहा होगा, कॉपी ऑफ अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप जो भी क्लास करेंगे उसके नाम के साथ कॉपी ऑफ जुड़ जाएगा। तो आप वापस से 3 आइकन्स पे क्लिक करें और क्लासेस पे जाएं, क्लासेस पे जाएं और यहाँ पे आप इससे जाके रीनेम कर लीजिए। सो अगेन 3 आइकन्स पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। एडिट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लास नेम रिक्वायर्ड में आप इसे एडिट कर सकते हैं और इसे यहाँ आप 2021 लिख सकते हैं। तो ऐसे भी टीचर्स, अगर हमारा ऑफलाइन क्लास भी रिज्यूम होता है तो भी मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ये फीचर्स यूज करिए, क्योंकि आपको पता ही है क्लास में कौन सा बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है। आपने फिजिकली नोट्स दिया और जैसा सर ने भी कल बताया था, बहुत अच्छी बात, अब वो फिजिकली आपने नोट्स या स्टडी मटेरियल दिया या नहीं दिया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर कुछ बच्चे लेके बैठ जाते हैं, बाकी बच्चों से शेयर ही नहीं करते, और आप भी कितनी फोटोकॉपीज करके देंगे। तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग कर रहे हैं तो वो वीडियो क्लासेस की बात है।
तो वो ऑफलाइन में चल सकता है, बट उसके साथ आप गूगल क्लासरूम हमेशा यूज कर सकते हैं, ऑल थ्रू आउट, वेदर ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस हो रहे हो या नहीं हो रहे। तो ये टीचर्स हमने फीचर देखा। इसी में टीचर्स हम लोग ये भी देख सकते हैं रीयूज पोस्ट का। तो रीयूज पोस्ट के लिए मैं आपको एक दूसरे क्लास में ले जाऊंगा जी, क्योंकि इस क्लास में मेरा वैसा कोई पोस्ट नहीं था। तो एक सेकेंड आप मुझे दें। तो अभी हमने देखा कॉपी क्लास, आर्काइविंग क्लास, और हमने उसमें देखा कि हम लोग कैसे उसे कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा कॉपीड क्लास में पहले के कंटेंट्स को रीयूज करना। रीयूज ही हो गया वो, क्योंकि वो आपके पास सेव्ड है, बस आपको एडिट करके पोस्ट करना है। पर यहाँ पे अगर आप रीयूज पोस्ट करना करते हैं क्लास वर्क में जाके, सर ने बस ये वाला आइकन कल नहीं कवर किया था तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी सारी चीजें आपने कल देखी थी, सीखी थी। सो क्रिएट में आप रीयूज पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी मैंने जानबूझ के कई सारे मेरे क्लासेस वापस आर्काइव से एक्टिव किया है, ताकि मुझे व्हेन आई सेलेक्ट दिस रीयूज ऑप्शन, so I get multiple options, so I can show you. So this is taking time because it is fetching data from all my classes. So जितने भी आपके क्लासेस हैं और उस सारी क्लासेस में आपने जो भी मटेरियल पोस्ट किया होगा, उन सब का डेटा ये आर्काइव से वो डेटा रिट्रीव करके यहाँ पे आपको शो करेगा, और उनमें से कोई भी आप दोबारा पोस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक बस आ जाएगा। तब तक मैं चैट्स भी देख रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेरी है या कुछ है। ओके, अभी तक नहीं। ओके, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। लेट मी शो अनदर थिंग तब तक। ये पोस्ट भी आपने देखा था, ये पेपर मैं एक फेलो टीचर के साथ, गेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ा रहा था। उनका नाम कीर्ति था। सो वी वर टीचिंग दिस पेपर एंड वी हैड ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ द 48 स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल हमारा एक सेक्शन का साइज होता है, 48, 50, 55 स्टूडेंट्स। और ये उनका सारा इंटरनल असेसमेंट वगैरह सब था। तो अब मैं यहाँ पे अगर रीयूज पोस्ट ये वाला करता हूँ, अब देखिए आ गया। पर ये कंटेंट वाला पोस्ट नहीं है, ये बस ये वाला क्लासेस वाला पोस्ट है। सो अगर मैं इसी में क्लिक करूँ, सो आप देख सकते हैं जैसे मैम ने लिखा था कि आपके असाइनमेंट्स अप्रैल 25 को इवेलुएट हो गए हैं, और आप इसको कर सकते हैं, बच्चे इसको कंटेंट मार्क्स वगैरह देख सकते हैं। तो हम इसको रीयूज अगर पे क्लिक करते हैं, तो आप देखिए अगेन आपके पास पोस्ट करने के पहले आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे सब चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक ही साथ सारे कोर्सेज का इंटरनल असेसमेंट पूरा कर दिया है और बच्चों को सारे मार्क्स रिटर्न कर दिए। सो आप यहाँ पे बाकी 3-4 कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप बाकी 3-4 कोर्सेज का भी असाइनमेंट हो चुका है, और बच्चे अपना मिस्टेक्स, कमेंट्स, क्वेरीज, जैसा सर ने दिखाया कमेंट्स वगैरह आप पोस्ट कर सकते हैं। कल दिखाया सर ने, तो आप वो सारी चीजें देख सकते हैं, कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं कि कहाँ गलती है। एज अ बच्चों के लिए आप ये मैसेज लिख रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। बट आप जब रीयूज पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि आप सारे अपने क्लासेस में डाल सकते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने ये वाला क्लास चूज किया, तो इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स चूज कर सकता हूँ। हो सकता है 2-3 स्टूडेंट्स ही हों जिसे ये देने की जरूरत है, बाकी सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी पहले से करेक्टेड हो, 2-3 बच्चों को ही मुझे इन्फॉर्म करना है।
तो सारे बच्चों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए, तो मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा और वो 3 बच्चे जैसे आदित्य, भारतेंदु और कैफ को मैं ये मैसेज भेज दूंगा कि आप लोगों के रिवाइज असाइनमेंट्स हो गए। तो इस तरह से आप अब देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स आ रहा है इंस्टेड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। एंड अगेन यहाँ पे मैं साथ में कुछ ऐड कर सकता हूँ, अगर इन लोगों ने फॉर एग्जांपल कॉमन मिस्टेक किया है तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करके उनको शो कर सकता हूँ। अगेन ये मैं चाहता हूँ कि 2 दिन बाद मिले बच्चों को, तो यहाँ पे आप रीयूज पोस्ट में भी आपके पास शेड्यूल करने का ऑप्शन है। मतलब एज अ टीचर हम लोग कितना चाहते हैं कि जो भी आगे के 2-3 दिन के काम हो वो सब एक साथ हो जाए, तो आप सारी चीजों को स्केड्यूल करके डाल सकते हैं। वो 2-3 दिन बाद अपने आप या अगले 2-3 दिनों में वो अपने आप आपके स्केड्यूल्ड टाइम पे चीजें डिलीवर होती रहेंगी। तो आप यहाँ पे अगेन इसको शेड्यूल कर सकते हैं, अभी पोस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं या फिर इस चीज को डिलीट कर सकते हैं। मैं बच्चों को शॉक में नहीं डालना चाहता क्योंकि नया सेमेस्टर इशू स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कुछ नया पोस्ट नहीं करूंगा पुराने सेमेस्टर का, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ। पर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और अगेन मैं शो करूँ रीयूज पोस्ट में, आपको याद होगा जैसे ही मैंने रीयूज पोस्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास जितने भी क्लासेस बने हुए हैं उन सब के ऑप्शन आ गए। तो जैसे आप किसी लैंग्वेज के टीचर है, मैंने देखा इस कॉलेज में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कितने सारे लैंग्वेज, इंग्लिश, कितने सारे लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स। तो आप अगर कोई अच्छा आर्टिकल या कोई अच्छा राइटअप या कोई अच्छी बुक साहित्य की या लिटरेचर की आपके डिसिप्लिन में है, तो वो कोई ऐसा बाउंडेड नहीं है, वो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगेन आप यहाँ से किसी से भी किसी भी क्लास से पिक कर सकते हैं और बाकी सारे क्लासेस के सारे बच्चों के साथ भी वो आर्टिकल, वो मटेरियल आप शेयर कर सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट वाले टीचर्स काफ़ी सारा, कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स वाले टीचर्स केस स्टडीज वगैरह, इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स बिजनेस से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अपने अपने डिसिप्लिन का है वो आप शेयर कर सकते हैं। मैथ्स वाले टीचर्स, मैथ्स में किसी को नोबेल प्राइज मिला है तो वो इंफॉर्मेशन ऐसी चीज है जो आप सारे ईयर्स के बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि उनका क्या काम था, ताकि बच्चे मोटिवेट हो। तो आप वो शेयर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस सारा कंटेंट रीयूज कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको डाल सकते हैं। अब देखिए ये सारा आ गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा था क्योंकि काफ़ी हैवी फाइल्स हैं जो इसमें अटैच्ड हैं, पीडीएफ फाइल्स काफ़ी सारे एमबी की, पर अभी ये इंटरनेट बफर हो गया तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब आप एक चीज़ पे गौर करें, जो हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब हम क्लास वर्क में गए हैं तो यहाँ पे रीयूज पोस्ट का ऑप्शन सिर्फ इसी क्लास के कंटेंट के लिए आ रहा है। वहां पे रीयूज पोस्ट जो कि होम स्क्रीन था सॉर्ट ऑफ, वहां पे हमारे पास सारे दूसरे कोर्सेज के लिए भी आ रहा था, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसी कोर्स का पोस्ट कर सकते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे कोई भी टॉपिक वगैरह देख के आपको जो पोस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट कर सकते हैं। सो ये था रिगार्डिंग रीयूजिंग पोस्ट, रीयूजिंग कंटेंट, और हमने और भी चीज़ें देखी, आर्काइविंग, कॉपिंग, रीस्टोरिंग। अच्छा, अब मान लीजिए मैं एक किसी क्लास को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं मतलब अब मुझे पता है कि वो रिपीट नहीं होगा या फिर हमारा सिलेबस चेंज होता रहता है यूनिवर्सिटी से भी, तो अब वो पेपर क्यूरिकुलम से हट चुका है। तो अब मैं उसको डिलीट कैसे करूँ? अभी तो मैंने आर्काइव में भेजा, अब उसको डिलीट कैसे करूँ? तो एक बार पहले आप, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी क्लास को, जैसे ये मेरे क्लासेस हैं, तो यहाँ मैं किसी भी क्लास को डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट करने के लिए मुझे पहले उसे आर्काइव में भेजना होगा। जैसे आप यहाँ पे किसी भी क्लास पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप पहले इसे आर्काइव करिए, इसे आर्काइव में भेजिए पहले। आर्काइव में अब आप देख सकते हैं ये 2021 वाली क्लास आर्काइव में चली गई होगी, यहाँ पे आ गई है ये 2021 वाली क्लास। अब यहाँ पे आप आर्काइव में जो चीज़ें हैं रीस्टोर के साथ आप वो देख सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन। तो अब आप इसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे फीचर्स हैं।
और यहीं पे चूंकि नोटिफिकेशन भी है और टू डू भी है, तो मैं एक बार वो भी आपको शो करता हूँ। तो आप जैसे आर्काइव क्लासेस के नीचे देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये मेन मेन्यू इसे कहते हैं, 3 डॉट्स गूगल क्लासरूम के जस्ट पीछे मेन मेन्यू से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है आपके, आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं टीचिंग और जिस चीज़ों में आप इनरोल्ड हैं। तो मैंने अपनी ही दूसरी ईमेल आईडी से कुछ चीज़ें इलस्ट्रेट करने के लिए एक क्लास क्रिएट करके उसमें इनरोल भी किया है। तो जैसा सर भी आपको कल स्टूडेंट टीचर दोनों व्यू दिखा रहे थे, वैसा ही मैं भी कुछ चीज़ों के लिए वैसा करूँगा। तो उसके लिए मैंने इनरोल भी किया हुआ है क्लास में। सो टीचिंग एंड इनरोलमेंट, या जैसे हम लोग किसी एफटीपी में इनरोल करते हैं और एफटीपी में मान लीजिए एफटीपी की टीम ने गूगल क्लासरूम बनाया, तो हम लोग इनरोल्ड होंगे। और आर्काइव्ड क्लासेस तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप इनरोल्ड हैं अगर किसी एफटीपी में या किसी चीज में, तो वहां पे आपको टू डू लिस्ट होगी। अब यहाँ पे कोई टू डू नहीं आ रही है, पर फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी एफटीपी में, किसी ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम में या किसी शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्स में आप इनरोल्ड हैं और उसमें गूगल क्लासरूम यूज हो रहा है, और जैसा आपको इस एफटीपी में भी क्विज वगैरह करना है, तो वो क्विज वगैरह का जो भी ड्यू डेट है, जो भी असाइनमेंट है या क्विज है या कुछ और चीज़ है जो आपको करके देनी है, क्वेश्चन को आंसर करना है, तो ये सारी चीज़ें जिस भी क्लास में आप इनरोल्ड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल क्लासेस आ रहा है, या फिर आप चूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली कोई एफटीपी या प्रोग्राम अगर आप एक से ज़्यादा में भी इन्वॉल्व हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें ड्यू हैं, मतलब सारे क्लासेस को गूगल क्लासरूम इतना इंटेलिजेंट है कि बच्चों के लिए आप देखिए इतनी अच्छी इंटरफेस है। जैसे एक बार में बच्चे 4-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे और उनके इनरोल्ड में 4-5 सब्जेक्ट्स आएंगे। सेकेंड ईयर में आपको पता है 5 सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 5 सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे। 5 सब्जेक्ट्स में से वो सारे क्लासेस का देख सकते हैं, अदरवाइज बच्चे किसी एक पर्टिकुलर क्लास पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ड्यू हैं और कब कब उसका ड्यू डेट है, क्या देना है, असाइनमेंट देना है, टेस्ट देना है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे डन, जैसे मैंने कुछ असाइनमेंट शेयर किया था, मैं एक और कॉलेज में एफटीपी ले रहा था, तो वहाँ पे कुछ बना के ऐसे शेयर किया था, तो ये पहले फॉर एग्जांपल कुछ कर दिया, तो ये भी आ रहा है कि ये काम एज अ स्टूडेंट हमने कंप्लीट कर लिया और ये काम हमारे एज अ स्टूडेंट करने ड्यू है अभी। सो आप ये यहाँ से देख सकते हैं टू डू। सिमिलरली आप टीचर के पर्सपेक्टिव से देखिए, तो ये सारे एडिशनल या एडवांस फीचर्स हैं। आप ये देखिए टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, आप टीचर के पर्सपेक्टिव से आपको क्या करना होगा, आपको रिव्यू करना होगा सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो टू रिव्यू में क्या है, जैसे कुछ अनग्रेडेड हैं या फिर एक बच्चे ने सबमिट नहीं किया, या फिर ये सारी चीज़ें भी सर ने आपको कल बताई थी कि टर्न्ड इन का मतलब है सबमिटेड, असाइंड का मतलब है कितने को असाइन किया गया है, ग्रेडेड मतलब आपने स्कोर्स दे के रिटर्न कर दिया है बच्चों का प्रोजेक्ट, बच्चों का इंटरनल असेसमेंट। तो जो टू रिव्यू वर्क है उसमें आपका किसमें कहाँ कितना बाकी है। तो 24 टर्न्ड इन का मतलब अभी 24 लोगों ने असाइनमेंट दे दिया है पर मैंने चेक नहीं किया है, तो मुझे ये काम करना बाकी है। आप ये देख सकते हैं, ये कलर से भी हाईलाइटेड है क्योंकि ये काम आपका बाकी है। तो एज अ टीचर भी सारे इंटरनल सारे क्लासेस को स्कैन करके वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर देगा कि आपको क्या देखना है, क्या रिमूव, क्या आपका काम बाकी है। और अगेन यहाँ पे आप यहाँ पे दूसरे क्लासेस चेंज कर सकते हैं, आर्काइव क्लासेस का भी देख सकते हैं। और रिव्यूड वर्क में आई होप जो आपने काम कर लिया है वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे आप और एक चीज़ देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन सेटिंग्स की हम बात कर रहे थे, सो दैट यू आर नॉट अननेसेसरली बॉदर्ड विथ कॉन्टिन्यूस ईमेल्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 4 क्लासेस है जिसमें 100, 200, 300 भी कई बार बच्चे हो जाते हैं जो इनरोल्ड हैं, खासकर जेनरिक क्लासेस है या कोई ऑप्शनल क्लासेस हैं।
तो अब हर बच्चा जब जब भी असाइनमेंट सबमिट करेगा, खासकर अगर ड्यू डेट के बाद सबमिट करेगा, तो हर 1 मिनट भी 1 सेकंड भी डिले सबमिट करेगा तो हर चीज का हमें नोटिफिकेशन आता है। और आपका एक ही दिन में 50 मेल्स आ जाएंगे कि इस बच्चे ने इस कोर्स का ये असाइनमेंट सबमिट किया, उस बच्चे ने उस कोर्स का ये असाइनमेंट सबमिट किया, एंड इट विल बी अ बिग बॉदरेशन। सो हाउ डू वी मैनेज दिस? तो आप पूरा का पूरा इसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना फोटो, ये सारी चीजें भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चेंज वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पे। अदरवाइज हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, विच इज नोटिफिकेशंस, ईमेल नोटिफिकेशंस। अब आप एक चीज देखें कि जैसे ही मैं रिसीव ईमेल नोटिफिकेशंस को कंप्लीटली डिसेबल, जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग ग्रेडेड फ्रीडम भी दे सकते हैं गूगल क्लासरूम, मतलब कितना भेजना है, ऐसा आउटराइटली नहीं कि बिल्कुल भी मत भेजो या भेजो थोड़ा सा भेजो। तो ये चीजें भी हम चूज कर सकते हैं। अगर आप रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट, अभी आपको बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव ही रहता है, तो आपको टीचर्स, डियर टीचर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने सेटिंग्स में जाके, और आपको ये चीज हर क्लास वाइज नहीं करने की जरूरत है। आप ये देख सकते हैं ये ओवरऑल मेन मेन्यू में है, ये सारे क्लासेस के लिए सेम है। तो आपको ये एक एक क्लास के अंदर जाके सेटिंग्स को नहीं चेंज करना है, ये सारे ही क्लासेस पे एप्लीकेबल होगा। तो आप यहाँ पे अगर रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन को डिसेबल कर देते हैं तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, नाइदर एज अ टीचर नॉर एज अ स्टूडेंट। आपको कोई भी सेटिंग, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगी किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अदरवाइज आप चूज कर सकते हैं, जैसे कमेंट्स ऑन पोस्ट, कमेंट्स दैट मेंशन यू, इन चीजों को डिसेबल किया है। अब जैसे प्राइवेट कमेंट्स, ये बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। तो अगर टीचर ने या किसी और ने आपके काम पे कमेंट किया है तो आप उसे, उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। अब यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं सेग्रीगेशन, क्लासेस जिसमें आप इनरोल्ड हैं एज अ स्टूडेंट, एंड क्लासेस जिसमें आप एज अ टीचर इनरोल्ड हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं आप उस क्लासेस को। तो अगेन जहाँ पे आप अब जैसा एज अ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं चाहूँगा कि टीचर ने कोई मटेरियल डाला है तो मुझे पता चल जाए। फिर अगेन आप, मैं एज अ स्टूडेंट मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही मेरा असाइनमेंट, जैसे बच्चों को भी आप जानते हैं इंक्विजिटिवनेस रहती है कि कितने मार्क्स मिले टेस्ट में वगैरह में। सो व्हेनेवर द टीचर रिटर्न्स द वर्क बाय प्रोवाइडिंग ग्रेड्स, सो बच्चे वो चीज चाहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन, पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं टीचर कब फ्री होंगे, कब वो चेक करेंगे, कब वो रिटर्न करेंगे। तो उनको एक ईमेल आ जाए जैसे ही मेरे मार्क्स आ गए, इनफैक्ट, और उस ईमेल में बच्चों के मार्क्स भी आ जाते हैं। अगेन इनविटेशन टू ज्वाइन क्लासेस एज अ स्टूडेंट, तो ये भी अगर टीचर डायरेक्टली आपको, टीचर के पास ईमेल आईडी है, या टीचर कई बार क्या करते हैं कि किसी सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव को दे सकते हैं वो काम, तो अपनी एज अ को टीचर ऐड करके फॉर द टाइम बीइंग, या फिर अपनी आईडी पासवर्ड देके वो कर सकते हैं, और उसके बाद उसे चेंज कर सकते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर ले। या फिर सिंपलर वे है कि आप स्टूडेंट्स के साथ क्लास कोड शेयर कर लीजिए। तो अगेन इनविटेशन आपको आया है, आपके सब्जेक्ट टीचर्स, खासकर ये बच्चों को शुरू में इनेबल रखना चाहिए, जब सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, जब टीचर्स ऐड हो रहे हैं, जब पेपर्स उनके ऐड हो रहे हैं, पेपर्स वो चूज कर रहे हैं, टीचर्स ऐड हो रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कई बार हमारी कुछ इनिशियल टाइम टेबल वगैरह की वजह से कुछ टीचर्स कभी कभार हमें शफल करने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, कुछ गेस्ट टीचर्स आ जाते हैं, कोई टीचर को लीव पे जाना पड़ता है। तो आप ये स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वो ये वाला पार्ट इनेबल रखें, ताकि कुछ भी चेंजेस हो, नए क्लासेस बने तो वो उन्हें पता चल जाए, उन्हें इनविटेशन मिल जाए। अब ये वाली चीज आप देखें, क्लासेस जिसमें आप टीच कर रहे हैं, सो अगर लेट सबमिशन हो रहा है स्टूडेंट वर्क का तो ये डिसेबल्ड है। तो अगर इसे आप इनेबल कर देंगे तो दिस विल बी, जो मैं बता रहा था, बिग बॉदरेशन, क्योंकि हर स्टूडेंट जो 5 सेकेंड आपके ड्यू डेट, जैसा सर ने कल शो किया 11:59 है, तो 5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जब भी बच्चे सबमिट कर रहे हैं, तो हर बच्चे के सबमिशन के साथ आपको मैसेज आएगा कि इसने लेट सबमिट किया, इसने लेट सबमिट किया, इसने लेट सबमिट किया। तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग इसे डिसेबल रखते हैं। और रीसबमिशन, जैसा आपने बच्चों को कई बार हम लोग रिवाइज करने बोलते हैं, कोई पार्ट वो मिस कर गए हैं या कोई पार्ट उन्होंने गलत सॉल्व किया है, कोई खासकर क्वांटिटेटिव चीजों में, तो आप उन्हें
रीसबमिट करने बोलेंगे। तो जब रीसबमिशन बच्चों ने कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन शायद आप चाहेंगे कि आपके पास आ जाए। फिर अगेन टाइम टेबल्स बन रहे हैं, पेपर्स डिसाइड हो रहे हैं, कुछ पेपर शेयरिंग बेसिस में दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको आपके फेलो टीचर्स इनवाइट कर रहे हैं टू टीच अ क्लास, सो जैसे हम लोग अगर दो टीचर पेपर शेयर कर रहे हैं तो कोई भी एक टीचर अपने गूगल अकाउंट में क्लास क्रिएट कर सकते हैं और वो दूसरे टीचर को इनवाइट कर सकते हैं। फिर अगेन अगर कभी इंटरनेट फेलियर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, ऐसा होता बहुत कम है, अगर पोस्ट जो आपने स्केड्यूल किया हुआ था वो फेल हो गया तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाए, या फिर आपके पास ये भी नोटिफिकेशन आ जाए कि जो भी आपने स्केड्यूल किया था पोस्ट वो पब्लिश हो चुका है। मतलब जिस भी कंटेंट्स और सारी चीज़ों के साथ जब आपने उसको प्लान किया था कि वो पोस्ट होके विजिबल, पब्लिश होके विजिबल हो जाए, वो हो चुका है। तो इसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं या नहीं। तो ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतने सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो कुछ भी ऐसे सोचने या बॉदर होने की बात नहीं है कि आपको ये बहुत ही ट्रबल करने वाला है गूगल क्लासरूम। और फिर भी आप अगर वरीड हैं तो आप सिंपली इसे अनटिक कर दीजिए, तो आपको किसी भी चीज़ का कोई भी ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप खुद ही जब गूगल क्लासरूम खोलेंगे आपको सारे अपडेट्स दिख जाएंगे। फिर डियर टीचर्स, अब मैं एक दो चीज़ें आपको किसी एक क्लास में एंटर करके शो करना चाहता हूँ। तो लेट मी ज्वाइन इन, लेट मी गो टू अ क्लास। जैसे ये आईसीटी टूल्स का मैंने मान लीजिए एक क्लास बनाया, ये मैं आपको आज इंस्टीट्यूशनल आईडी से शो कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा सर ने भी कल बताया था, यहाँ पे सेटिंग का आइकन है। यहाँ पे ये सेटिंग का आइकन है, आप इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो आपको एक आइडिया डियर टीचर्स यही है मेरे इस तरह से टीच करने का कि आप खुद ही ये चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जैसे आपके सामने गूगल क्लासरूम में जितनी भी चीज़ें विजिबल हैं, सर ने सारे टैब्स बताए, सेटिंग्स भी बताया, 9 आइकन्स भी कल बताया। तो आप खुद ही जब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे सेटिंग्स आइकन पे मैंने क्लिक किया तो अगेन, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, पर अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और टाइम टेबल बनता है और हम लोग जानते हैं हमें रूम्स असाइन होते हैं, सेक्शन सेक्शन असाइन होता है। तो हम ये सारे डिटेल्स शुरू में हमें नहीं पता, अब ऑनलाइन क्लासेस में कोई रूम नहीं है, बट हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो जैसा मैंने बोला गूगल क्लासरूम तो आपको फिर भी मेंटेन करना चाहिए। तो आप यहाँ पे अब रूम ऐड कर सकते हैं, तो बच्चों को भी तुरंत रेफरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज उनके पास टाइम टेबल भी होगा, पर यहाँ भी उनको आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इस कोर्स की क्लासेस कब चलती हैं, कहाँ रू होती हैं। अब यहाँ पे टीचर्स आप देख पा रहे हैं क्लास कोड। तो इस क्लास कोड एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कल सर ने इलस्ट्रेट किया कि इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं आपकी क्लास। तो यहाँ पे हम लोग दो तीन चीज़ें और देखते हैं जो इसे थोड़ा सा और मल्टीपल यूजेस इसमें हम लोग क्या एडिशनल कर सकते हैं वो हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं। सो आप यहाँ पे अगर क्लास कोड के साथ देखें तो आपको तीन चार चीज़ें दिख रही हैं। तो वन ऑप्शन इज अगेन कॉपिंग। सो आप फॉर एग्जांपल कॉपी क्यों, आप कॉपी करके इसे व्हाट्सएप पे डालना चाहते हैं। तो कई बार हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं बच्चों के साथ फॉर ईज इन कम्युनिकेशन, तो आप क्लास का कोड कॉपी करके व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं अपने क्लास ग्रुप पे। तो मोस्टली बच्चे, ना आपको ऐड करना पड़ेगा ना कोई और दिक्कत होगी, मोस्टली बच्चे ज्वाइन अ क्लास में ये वाला कोड जो आपने दिया होगा वो डाल के वो ज्वाइन कर लेंगे आपकी क्लास। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा मैंने कल बोला, ये जो गूगल क्लास कोड है, सॉरी मैंने आज बोला गूगल क्लास कोड में कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है, ये नॉर्मली ये जो क्लास कोड है ये 5 to 7 डिजिट्स का होता है।
तो गूगल ने इतना 5 to 7 डिजिट्स करने की वजह से इतना बैंडविड्थ रखा हुआ है कि जैसे अब ऑनलाइन कोविड-19 के बाद ऑनलाइन टीचिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी और स्कूल लेवल पे भी होने लगी, तो काफ़ी थाउजेंड्स लैक्स ऑफ क्लासेस बन रहे हैं। तो ये जो क्लास कोड है, ये पूरी दुनिया में आपका यूनिक है। ये तो पूरी गूगल क्लासरूम में दुनिया में कहीं भी किसी भी और का ये क्लास कोड नहीं होगा जो आपका है, आपके इस क्लास का है। और ये 5 to 7 डिजिट्स अभी जो गूगल की पॉलिसी है, ये 5 to 7 डिजिट्स की होती है और ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। सो इसमें अल्फा अभी आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, पर ये अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, बीच में कहीं भी नंबर भी आ सकते हैं। बट कई बार हो सकता है, ऐसा बहुत कम होता है, पर स्टिल अगर एक चांस है कि बच्चे इस कोड के साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल एरर है या कुछ भी और मिस प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसे रीसेट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही रीसेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आप देख पाएंगे एक नया कोड जनरेट हो गया। तो आप यहाँ मैसेज भी देख पा रहे होंगे, क्लास कोड सेट, नया कोड जो बन गया है आपका। तो अब आप बच्चों को प्रीवियस कोड के साथ उनको कुछ भी टेक्निकल या अदरवाइज कुछ ग्लिच हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप यहाँ क्लास कोड रीसेट कर लीजिए एंड देन यू गिव देम दिस न्यू कोड सो दे कैन ज्वाइन इन विद दिस न्यू कोड। फिर एक इशू ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ हम लोग थ्री इडियट्स के कुछ आमिर खान जैसे लोग हैं जो बिना अटेंडेंस बिना मार्क्स के हर क्लास में ही जाके बैठना चाहते हैं और सारे क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं। वो अदरवाइज तो अच्छी चीज़ है, पर अगर आप उससे बॉदर्ड हैं तो ये आपकी पर्सनल पॉलिसी है एज अ टीचर कि आप उनको इंटरटेन करना चाहते हैं या उनको इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने बच्चों को ऐड कर दिया या सीआर के थ्रू या खुद ही ऐड कर दिया या करवा दिया, या फिर बच्चे आपने चेक कर लिया कि सारे बच्चे आपके ऐड हो चुके हैं, जितने भी बच्चे आपके अटेंडेंस लिस्ट में रोल्स ऑफ द कॉलेज में हैं, जिन्होंने भी वो पेपर ऑप्ट किया है या उस कोर्स में है, वो सारे बच्चे ज्वाइन इन कर चुके हैं। अब आप ये नहीं चाहते कि आपकी, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत डाइवर्स होते हैं, आप लोगों को भी पता है, वो कुछ भी शरारत भी कर सकते हैं, अदरवाइज जेन्युइनली भी कर सकते हैं, बट शरारत भी करते हैं बच्चे। तो वो दूसरे अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को दे देंगे आपके क्लास का कोड, किसी भी अननोन थर्ड पर्सन को दे देंगे, फिर वो पर्सन कुछ भी कमेंट लिखेगा या कुछ भी करेगा। क्योंकि आपको क्लास कोड अगर किसी के भी पास है तो वो आपका क्लास डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता है, उसको परमिशन नहीं चाहिए फिर। तो ये थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बार आपके सारे नोन बच्चे आ गए जो ऑन द रोल्स हैं ऑफ द कॉलेज या कोर्स, तो आप इस क्लास कोड को डिसेबल कर दीजिए। जैसे पहले फ्यू डेज़ में 1 वीक मैक्सिमम या 2-3 डेज़ में सारे बच्चे एनरोल हो गए क्लास में, आप इसे अब डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने से ये होगा कि अब जैसे क्लास का गेट शट हो गया, अब कोई एंट्री नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट कई टीचर्स करते हैं, अब कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो डिसेबल होने के बाद अब किसी के पास प्रीवियस कोड होगा भी तो भी वो आपके क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो ये आप चीज़ें यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। और मान लीजिए अगेन हमारे पास ये होता है ना, 1-2 लेट लतीफ़ बच्चे हमेशा ही कि मैं व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मुझे ईमेल नहीं आया, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो 1-2 बच्चे आपको फिर बाद में आएँगे ही आएँगे कि मेरा मिस हो गया, सो प्लीज़ मुझे अलाउ कर दीजिए। तो आप यहाँ पे उसे इनेबल कर सकते हैं वापस से। इनेबल कर सकते हैं। और अब अगेन आप यहाँ, जैसा मैं बोल रहा था, ये अल्फा न्यूमेरिक है, तो आप यहाँ 2 नंबर सब देख सकते हैं 7-4। तो अब आप ये नया कोड शेयर कर सकते हैं बच्चों से और वो बच्चे उन कोड के साथ ज्वाइन इन कर लेंगे। फिर आप उसके बाद अगेन चाहें तो इसे डिसेबल कर सकते हैं। और चीज़ें जैसे स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम में आप जैसे कुछ शुरू में, अब जैसे अगेन बच्चे अलग-अलग होते हैं, अब उन थोड़ा-सा वो बेवकूफ़ी में और थोड़ा-सा शरारत में, अब ये पब्लिकली सबको विज़िबल होता है, पोस्ट एंड कमेंट जैसा सर बता रहे थे। तो आप डिसेबल करना चाहते हैं कि बच्चे
जैसे पोस्ट भी कर सकें या कमेंट भी कर सकें। पोस्ट एंड कमेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही लिबर्टी देने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पोस्ट का मतलब वो कुछ भी नया टॉपिक या नया थीम, नए डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट एंड कमेंट तो डेफिनेटली आपको इनेबल नहीं करना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ है। आपको एटलीस्ट इसे कर देना चाहिए कैन ओनली कमेंट, सो सिर्फ वो आपके पोस्ट्स पे कमेंट कर सकें। या फिर आप ये कर सकते हैं ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट। तो स्टूडेंट्स कैन कमेंट में आपका ये हो जाएगा कि बच्चे कुछ डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, पर ये पब्लिक विजिबिलिटी के लिए। अगर आप ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट कर भी देते हैं, फिर भी बच्चे आपको प्राइवेटली कुछ क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं आपसे, पर वो पब्लिकली विजिबल नहीं होगा। फिर जैसा हम लोग मैं चूंकि मैंने इंस्टीट्यूशनल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल मीट क्लासरूम नाउ सपोर्ट्स मीट का भी है कि ऑप्शन, क्योंकि पहले पैंडेमिक के पहले, कोविड-19 के पहले मोस्टली ऑफलाइन क्लासेस थी, तो गूगल मीट का उतना यूजेस नहीं हो रहा था गूगल क्लासरूम के साथ। अभी आपको पता होगा 2-4 दिन पहले ड्यू का भी नोटिफिकेशन आया कि टीचर्स इनकरेज हो रहे हैं, टीचर्स आर इनकरेज्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड टू यूज गूगल क्लासरूम विद गूगल मीट। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल क्लासरूम, अगर अगेन आपने इंस्टीट्यूशनल लॉगिन से किया है, तो आप इंटीग्रेटेड है गूगल मीट क्लासरूम के साथ, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली जनरेट कर सकते हैं गूगल मीट का लिंक, और यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं एंड अगेन आप इसे स्ट्रीम में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसे अगेन कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई ईमेल ग्रुप है वहां भी डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इसे स्ट्रीम में डाल सकते हैं, दैट क्लासेस के लिए ये लिंक आपका होगा। फिर मैं एक दो चीजें और करना चाहता हूँ ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो लेट मी फॉर एग्जांपल सेव दिस चेंजेस। तो जैसा ओके, यस, सो टीचर्स, ये एक दूसरा असाइनमेंट, दूसरा क्लासरूम है दूसरे ईमेल आईडी से मेरे, जिसमें मैंने अगेन अपना ही एक और ईमेल आईडी ऐड किया हुआ था। और एक और एक बात है, अगर मान लीजिए बिफोर यू रीसेट और बिफोर यू डिसेबल द क्लास कोड, अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर गया है जो आपकी क्लास का नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये पिछले एक सीनियर फैकल्टी हैं, ये प्रीवियस एफटीपी की थी, तो इन्होंने ट्रायल वर्जन के मुझे हेल्प करने के लिए ज्वाइन किया था, तो अब मैं इन्हें रिमूव कर सकता हूँ। सो आप इनको क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी स्टूडेंट। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, 2-3 बच्चे जो भी डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं या जो भी आपके क्लास के नहीं है, और एक्शंस में जाके आप इन्हें म्यूट कर सकते हैं। म्यूट कर देंगे आप, तो ये भी कुछ भी कमेंट पोस्ट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये आएगा इंफॉर्मेशन आर यू श्योर, और आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो अब वो आप देख सकते हैं वो स्टूडेंट रिमूव हो गया। अब मैंने दूसरी ही ईमेल आईडी से 2-3 असाइनमेंट्स बनाए थे, जैसा सर ने आपको कल इलस्ट्रेट किया, क्विज असाइनमेंट और आर्टिकल और ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, और 3 चीज़ें जैसा हम लोग का जनरल पैटर्न होता है 10, 10 एंड 5 का, तो ऐसा हमने कर दिया इसमें। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ओवरऑल ग्रेड आ जाए, ओवरऑल ग्रेड आ जाए बच्चों का। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि ओवरऑल ग्रेड हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 3 असाइनमेंट या टेस्ट हैं हमारे पास 10, 10, 5, जिसको हम कंपाइल करना चाहते हैं। तो अब अगेन आप क्लास सेटिंग्स वाले आइकन से क्लास सेटिंग्स पे जाइए। क्लास सेटिंग्स पे जाके आप यहाँ पे अब आ जाइए। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई हैं। तो ये कैसे हुआ है, ओवरऑल ग्रेड में आप देखिए
दो तीन चीजें हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले नो ओवरऑल ग्रेड कर दूं, नो ओवरऑल ग्रेड कर दूं और इसे अगर मैं सेव कर दूं, तो आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पे चेंज हो गया है। जो आपको ओवरऑल ग्रेड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था और 84% आ रहा था स्कोर, वो अब नहीं आएगा, वो चीज़ हट गई क्योंकि मैंने ओवरऑल ग्रेड का ऑप्शन हटा दिया। तो ओवरऑल ग्रेडिंग नहीं हो रही, मतलब टोटल स्कोर कंपाइलेशन नहीं हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हमें इंटरनल असेसमेंट में या फिर आगे जाके भी अब हो सकता है इंटरनल असेसमेंट का वेटेज ज़्यादा रहे अगर एग्जाम्स कुछ वेटेज पोर्शन ऑनलाइन के वजह से ज़्यादा हो सकता है, तो हमें एक समेटेड फिगर चाहिए, फाइनल फिगर चाहिए। तो हम लोग अब इसमें दो तीन ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसा मैंने पीपीटी में भी आपको बताया था। तो एक हमारे पास टोटल पॉइंट्स का ऑप्शन है। टोटल पॉइंट्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हम लोग टोटल पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिया। अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, नो ओवरऑल ग्रेड, मतलब वो सिर्फ आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट्स का स्कोर शो कर रहा है बच्चों का, ओवरऑल ग्रेड नहीं शो कर रहा। पर टोटल पॉइंट्स हमने कर लिया और अगेन इसको सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं सारे स्कोर्स ऐड हो गए। तो इसमें सिंपली ऐड कर दिया 9, 8, 17, 17 प्लस 4 21 एंड टोटल स्कोर 25 है, तो 21 आउट ऑफ 25 84% हो गया। पर अब हम लोग यहाँ पे इसको और फर्दर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, तो नॉर्मली तो हम लोग जो मार्क्स होता है वो भी इसी ध्यान में रख के ही बनाते हैं कि जैसे हमें 10 मार्क्स का देना है तो कई बार हम 10 मार्क्स का ही एग्जैक्टली देते हैं। पर अगर बाई चांस आपने 10 मार्क्स या वैसा एग्जैक्टली नहीं दिया और आपने कई बार हम लोग कई टीचर्स का ये भी रहता है कि वो कोई भी कन्वीनियंट मार्क्स दे देते हैं 10 या 20, फिर बाद में उसको रीस्केलिंग करते हैं। तो वो सारे काम जो आप मैनुअली करते हैं, वो सारा एक एक बच्चे का आप मैनुअली करते हैं, वो सारा गूगल क्लासरूम आपके लिए फॉर हंड्रेड्स ऑफ बच्चे इन ऑल द क्लासेस खुद ही आपका कर देगा। आपको बस बच्चों को ग्रेड्स देने हैं और गूगल क्लासरूम को बताना है कि आपने जो भी असेसमेंट लिया है उसका वेटेज क्या है, उसका नाम क्या है और उसका वेटेज क्या है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ग्रेड कैटेगरी दे दी। ग्रेड कैटेगरी जैसे एक आर्टिकल में असाइनमेंट देना है बच्चे को, एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट देना है, एक टेस्ट देना है। तो मान लीजिए मैं टेस्ट का वेटेज अब 50% कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिख जाएगा कि -30, मतलब 30% हमें कम करना है, क्योंकि आपको पता ही है टोटल परसेंटेज 100 ही हो सकता है। तो अब ये 130% बन रहा है, तो मुझे कहीं से कम करना होगा। तो मान लीजिए मैं आर्टिकल असाइनमेंट और प्रैक्टिकल असाइनमेंट का वेटेज 15% कम कर देता हूँ। और अब ये मेरा नया स्कीम ऑफ मार्किंग है कि आर्टिकल असाइनमेंट 25% वेटेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल असाइनमेंट 25% वेटेज होना चाहिए और असेसमेंट टेस्ट का 50% वेटेज होना चाहिए। जो प्रीवियस मैंने किया हुआ था 40%, 40% एंड 20%, वो हमारा 10-10-5 के पैटर्न पे था। तो 40% की दो चीजें थी, तो वो 10-10 मार्क्स के थे, और एक चीज कोई अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस का इस बार था नहीं ऑनलाइन होने की वजह से, पर अटेंडेंस है तो अटेंडेंस, नहीं तो कोई और चीज का 20% यानी 5 मार्क्स का वेटेज आउट ऑफ आवर जनरल 25 मार्क्स। तो मतलब वैसे आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको ब्रॉडर बता रहा हूँ, तो आप कुछ भी इसमें इनोवेशन कर सकते हैं, बट आपको इंश्योर करना है कि टोटल वेटेज 100% होना चाहिए। तो ऐसा करके मैं जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब एक जो 84% था वो अब वेटेज 82, वो ओवरऑल ग्रेड 82.5% हो गया, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट का वेटेज इंक्रीज हो गया। इसमें बच्चे ने 4 आउट ऑफ 5 यानी 80% मार्क्स ही स्कोर किया था, पर इसका वेटेज मैंने अब 50% कर दिया है ओवरऑल कैलकुलेशन में। तो ये सारा वेटेज चेंज करना और कैलकुलेट करना, ये सब आप कर सकते हैं।
पर यहाँ पे डियर टीचर्स, ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ पे एक स्टेप आपको और करना होगा। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो भी मैंने असाइनमेंट लिखा, जैसे ऑनलाइन असाइनमेंट या राइट एन आर्टिकल ऑन टीचिंग फिलॉसफी या असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम, तो यहाँ पे मुझे एक उनको ग्रेड कैटेगरी असाइन करनी होगी, जैसे असेसमेंट टेस्ट है या आर्टिकल असाइनमेंट है या प्रैक्टिकल असाइनमेंट। तो आप पहले अपना असाइनमेंट या क्विज क्रिएट करेंगे और फिर उसे किसी एक आपकी, यहाँ पे जो हमने 3 कैटेगरीज डिफाइन की हैं ग्रेडिंग के लिए, यहाँ पे आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो जो भी आपने कैटेगरीज बनाई हैं ग्रेड देने की और उनका वेटेज दिया है, तो आपके जो असाइनमेंट्स हैं उनको आपको वन ऑफ दीज कैटेगरीज में डालना पड़ेगा, तब वो ये सारा कंप्यूटेशन कर लेगा। तो कैसे करना है, तो जैसे मैं यहीं से डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूँ किसी भी असाइनमेंट पे, इंस्ट्रक्शंस में गए, असाइनमेंट पे क्लिक किया, इंस्ट्रक्शंस में गए और यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक आपके या कल शायद आपका ग्रेड कैटेगरी या आपके उसमें भी पर्सनल में भी ग्रेड कैटेगरी नहीं आ रहा होगा अगर आपने ग्रेड कैटेगरी क्रिएट नहीं की है। पर अगर आपने ग्रेड कैटेगरी क्रिएट की है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 चीजें हमने वहां लिखी थी वो अब आ रही हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन देंगे, असाइनमेंट देंगे, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जैसा सर ने कल गूगल क्विज, गूगल फॉर्म से बताया, वो सारी चीजें आप किसी न किसी एक ग्रेड कैटेगरी में डाल देंगे, टेस्ट, असाइनमेंट, अटेंडेंस, ऐसे करके। और आप उसके पॉइंट्स डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ के पॉइंट्स का ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसका प्रोपोर्शन या वेटेज वहाँ पे फाइनल ओवरऑल ग्रेड में फिर भी डिसाइड कर सकते हैं। पर यहाँ से आपको ग्रेड कैटेगरी उस चीज़ की चूज करनी होगी। यहाँ से आपने गलती से या आप प्लान कर रहे हैं कि चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, कुछ चीज़ें जैसे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दे दिया या फिर कुछ बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए हम कुछ टेस्ट ले रहे हैं और हम नहीं चाहते कि उसका ओवरऑल ग्रेड में कोई वेटेज हो, तो उसके लिए आपको नो कैटेगरी चूज करनी होगी। अगर आप इफ यू चूज नो कैटेगरी, देन this assignment or this test or this question will not be used for computation of overall grade of students। तो ऐसे करके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो बेसिक असाइनमेंट और टेस्ट बनाना सर ने ऑलरेडी इलस्ट्रेट कर दिया है कल, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, हमारे पास टाइम की भी कमी है, पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। और लास्ट एक दो चीज़ें, क्योंकि सेशन का टाइम भी ओवर होने वाला है, तो जैसे 1 मिनट मैं एक बार टीचर विंडो से देखता हूँ। जैसे मैंने एक आर्टिकल बच्चों से पूछा, टीचर्स या बच्चों को, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनको दिया, राइट एन आर्टिकल ऑन योर टीचिंग फिलॉसफी, shed light on what you feel is the purpose of education, how it has evolved, what are the challenges that teachers are facing in digital era, and what innovative strategies and pedagogical tools we can use to cope up with it। तो ऐसे करके मैंने एक असाइनमेंट फॉर एग्जांपल दिया टीचर्स के लिए एफटीपी में किसी। अब यहाँ पे रूब्रिक मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो मैं पहले आपको ये वाला रूब्रिक शो कर देता हूँ। तो कल सर ने ऑलरेडी आपको रूब्रिक बताया हुआ है, तो उसी लाइंस पे मेरा भी रूब्रिक है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो जैसे 10 मार्क्स था, तो मैंने पहला क्राइटेरिया, आपको याद आ रहा होगा, कल आपने देखा होगा, पहला क्राइटेरिया मैंने बताया, जैसे मैं अगर इसे पूरा एडिटेबल कर दूं तो आपको ज़्यादा आसान दिखेगा, जैसा सर कल शो कर रहे थे, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो पहला क्राइटेरिया मैंने डाल दिया, ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ एजुकेशन के बारे में आप लिखिए। ये पहला पार्ट होगा आपका, पहला क्राइटेरिया होगा फॉर इवैल्यूएशन, और इसमें मैंने अगेन ये सारी चीज़ें लिखी, वेल कंसेप्चुअलाइज्ड है तो 3 पॉइंट्स, मॉडरेट है, बिलो एवरेज या पुअर है तो 1 2। फिर अगेन मैंने सेकंड एस्पेक्ट, जो मेरा सेकंड मेजर पार्ट था मेरे आर्टिकल का, वो था चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स इन डिजिटल एरा, तो अगेन एक्सेलेंट, अबव एवरेज।
बेटर एवरेज, इसमें हमारे लैंग्वेज के टीचर्स एंड आर्ट्स के टीचर्स बेटर कमेंट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शंस। इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। और अगेन उसको 3 to 1 पॉइंट्स दे दिया। एंड अगेन मैंने 1 मार्क्स आउट ऑफ 10 रखा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड फ्लो ऑफ कंटेंट्स के लिए। और इसमें मैंने 2 ही सब लेवल्स बनाए। तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि ऐसे आप कितने क्राइटेरियंस ऐड कर सकते हैं और कितने लेवल्स ऐड कर सकते हैं पर क्राइटेरियन। तो मैंने जैसा आपको पीपीटी में बताया, ऐसे इसके लिए हम लोग अप टू 50 क्राइटेरियन, जैसे यहाँ पे 3 क्राइटेरियंस हमने डाला है। फॉर एग्जांपल आपका 100 मार्क्स का प्रोजेक्ट है या 50 मार्क्स का रिपोर्ट है, तो आप ऐसे 50 क्राइटेरियंस एक असाइनमेंट या एक प्रोजेक्ट एक वर्क में डाल सकते हैं। और हर क्राइटेरियन के विदिन आप 10 लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर के लिए 3 लेवल है, लास्ट के लिए ओवरऑल फ्लो के लिए 2 लेवल्स है। तो ऐसे आप 10 लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे आप 50 क्राइटेरियंस पर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो मैं थोड़ी सी एडिशनल चीजें बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मैं ऐसे यहाँ पे आप अगेन 3 डॉट्स पे क्लिक करें तो एक्सपोर्ट टू शीट्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सपोर्टिंग टू शीट्स। अब रूब्रिक एक्सपोर्ट कंप्लीट का आपको मैसेज आ रहा है, लेट्स ओपन इट। तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज नाउ विजिबल। तो यहाँ पे ये एक गूगल शीट के फॉर्म में क्रिएट हो गया है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप जैसे अगेन आप अपना इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया अक्रॉस कॉलेजेस, मान लीजिए आप किसी एग्जामिनेशन कमेटी में हैं या फिर आप किसी इसमें पेपर शेयर कर रहे हैं, तो आप दूसरे टीचर्स या आप पेपर पढ़ा रहे हैं उसमें आप सीनियर या दूसरे टीचर्स इन अदर कॉलेजेस से आप सजेशन लेना चाहते हैं कि क्या या आप दोनों मिलके कॉमनली उस पर वर्क करना चाहते हैं, तो आप ये शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर इसे कर सकते हैं विद दूसरे टीचर्स, सीनियर्स, प्रोफेसर्स, एग्जामिनेशन कमेटी के लोग, और उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्राइटेरिया हमने रखा है। खासकर क्योंकि जो भी डिस्क्रिप्टिव असाइनमेंट्स हैं उसके लिए कुछ ना कुछ बेंचमार्क तो करना पड़ेगा, तो ये क्राइटेरिया रखा है इवैल्यूएशन का। पर जैसा गूगल यहाँ पे एडवाइस कर रहा है फर्स्ट लाइन में, इसमें जो मैंने अभी बोल्ड किया, इसमें आप कोई एडिटिंग मत करिए। इसमें शेयर कर सकते हैं बट कोई एडिटिंग मत करिएगा, बिकॉज ये एडिटिंग आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो भी आप एडिटिंग करेंगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज इसमें एडिटिंग मत करिए। जो भी सजेशंस हैं उस सजेशन को आप देख के वापस से आके यहीं पे चेंज करिए। तो जैसे मैं यहाँ पे वो सजेशन है कि प्रेजेंटेशन का कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल फ्लो करते हैं बस। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी तक सेव का बटन इनएक्टिव था, जैसे ही मैंने कुछ चेंज किया तो अब सेव का बटन एक्टिव हो गया। मैं सेव कर लेता हूँ इसे। अब इसका एक और पर्पस है, जो मैं आपको शो करूंगा। जैसे एक और कोई असाइनमेंट है और उसमें मैं चाहता हूं कि ये ही वाले रूब्रिक यूज हो जाए। तो कल सर ने यहाँ प्लस रूब्रिक का ऑप्शन दिखाया और उसमें क्रिएट रूब्रिक सर ने आप लोगों को करवाया। पर यहाँ पे आप रीयूज कर सकते हैं रूब्रिक। तो जैसे ही आप रीयूज रूब्रिक पे क्लिक करेंगे तो अगेन डियर टीचर्स आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ड्रॉप डाउन आ रहा है, जितने भी क्लासेस आप टीच करते हैं। तो जैसे खासकर जो लिटरेचर के टीचर्स हैं तो उनका कुछ कॉमन क्राइटेरियाज होता है, जो भी है ग्रामेटिकल या एग्जाम्पल्स या फ्लो या यूज ऑफ वर्ड्स एंड लेवल ऑफ राइट अप, सो जो भी क्राइटेरिया है।
तो वो अक्रॉस द क्लासेस भी यहाँ से डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसी क्लास के दूसरे असाइनमेंट जो मैंने आपको शो किया उसका यूज कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम रूब्रिक ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, तो मुझे दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है। और लास्टली आप इसमें ये भी देख सकते हैं, एक बार मुझे इसे डिलीट करने दीजिए तो मैं आपको दूसरी चीज शो कर सकता हूँ। अगेन आप प्लस रूब्रिक पे जाके इंपोर्ट फ्रॉम शीट्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रूब्रिक आपने दूसरे असाइनमेंट में अभी अभी इस विंडो में आपने देखा होगा, जो भी आपने अभी अभी एक्सपोर्ट टू शीट किया था वो यहाँ पे विजिबल है, जिसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको किसी दूसरे टीचर ने अपना रूब्रिक शेयर कर दिया है, जैसा हम कई बार कॉमन कंटेंट्स के लिए भी इंटरेक्ट करते हैं, सेम पेपर पढ़ा रहे हैं तो दूसरे टीचर से हम शेयर करते हैं रिसोर्सेस। तो अगर आपको किसी दूसरे टीचर ने शेयर किया है तो भी आप शीट से डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये एडिशनल चीज़ें मैं आपको रूब्रिक में बताना चाह रहा था। और एक तो लास्ट चीज़ें गूगल क्लासरूम के बारे में। सो जैसे एक स्टूडेंट का वर्क आया हुआ है, तो लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू इट। जैसे इसमें मैंने गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट बनवाया था किसी दूसरी एफटीपी में, और उसमें मैंने कुछ चीज़ें उनको स्ट्रीम क्लास वर्क वगैरह का स्क्रीनशॉट लेके भेजने बोला था। अब डियर टीचर्स, कल सर ने आपको बताया कि आप कैसे प्राइवेट कमेंट ऐड कर सकते हैं, बट हम लोग एज अ टीचर जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हार्ड कॉपी में असाइनमेंट आती थी, तो उसमें हम लोग एग्जैक्टली अंडरलाइन कर पाते थे, मार्क कर पाते थे, और किसी पोर्शन के बारे में कुछ कमेंट कर पाते थे कि इस पोर्शन में ये चेंज रिक्वायर्ड है, या इस पोर्शन में ये गलत है, या यहाँ पे मैथ्स में यहाँ पे ये फॉर्मूला या ये डेरिवेशन या ये नेक्स्ट स्टेप गलत है, तो ऐसा हम कुछ कर पाते थे। तो ये प्राइवेट कमेंट तो ओवरऑल हो गया, पर स्पेसिफिकली हमें ऐड करना है तो हम कैसे करें। तो जैसे ही आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही ये विंडो खुलती है तो यहाँ पे प्लस का टैब है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐड अ कमेंट का ऑप्शन है। तो ऐड अ कमेंट आप जब करेंगे तो आपको आ जाएगा कि हाईलाइट करिए किसी एरिया को। जैसे मैं ये वाले एरिया को हाईलाइट करता हूँ, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पीडीएफ है, ये कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट क्लियर और कमेंट कर रहा हूँ, तो जैसे ही बच्चा इस पोर्शन पे जाएगा तो उसे विजिबल हो जाएगा कि टीचर का कमेंट है कि ये वाला स्क्रीनशॉट या ये वाला पोर्शन क्लियर नहीं है। आप बता सकते हैं इनकरेक्ट ग्रामर है, जैसा मैं आपको अगर क्विकली शो करूं टाइम सेव करने के लिए इस टीचिंग फिलॉसफी वाले असाइनमेंट में। तो जैसे आप देख रहे हैं ये जैसे मैंने यहाँ कुछ कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं, चेक स्पेलिंग, ग्रामर एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर मैंने इस वाले पार्ट के लिए लिखा हुआ है गिव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स। फिर मैंने कुछ जैसे हम लोग अगर कुछ रिसर्च आर्टिकल बच्चों से लिखवा रहे हैं तो हम लोग जैसे ये कमेंट ऐड था तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिव साइटेशन सपोर्ट फ्रॉम लिटरेचर। तो आप ये बात जो बोल रहे हो इसके लिए जस्टिफिकेशन दो फ्रॉम अदर रिसर्चेस। तो ऐसा करके मैं सेव कर सकता हूँ। अब ये सारे जो कमेंट्स हैं, अब अगेन मुझे पता है कि ऐसे मेरे पास 50 या 100 असाइनमेंट्स हैं, और मुझे पता है कि यही वाले कमेंट मुझे बार बार लिखने पड़ेंगे क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे जो भी कमेंट बना उस पे 3 डॉट्स पे आप जाएंगे, तो आप एडिट डिलीट लिंक भी कुछ डाल सकते हैं, अगर कुछ आप एक्सटर्नल रिसोर्स डालना चाहते हैं इस कमेंट के लिए जिससे बच्चा पढ़ सकता है या देख सकता है तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे ऐड टू कमेंट बैंक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ऐड टू कमेंट बैंक कर देता हूँ
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, अभी ये ग्रेडिंग वाला आइकन है सेलेक्टेड, उसी के नीचे जस्ट नीचे आप देखेंगे कमेंट बैंक है। तो आप देख पा रहे हैं कमेंट बैंक में ऑलरेडी मैंने 2-3 कमेंट्स डाले हुए हैं। तो आप इस कमेंट बैंक से सजेस्ट तुरंत कमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक नया पोर्शन हाईलाइट कर लूं कमेंट करने के लिए, और यहाँ से मैं आप देख पा रहे हैं मैं इमीडिएटली कॉपी कर सकता हूँ। ये पूरा कमेंट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और मुझे ये पूरा कमेंट, क्योंकि कमेंट कई बार बड़ा भी हो सकता है, तो मुझे कमेंट टाइप नहीं करना पड़ा और मैं इस पार्ट पे अगेन कमेंट कर सकता। तो ये है रीयूजिंग अ कमेंट, सेविंग अ कमेंट, यूजिंग द कमेंट बैंक टू चेक दिस। सो आई थिंक टाइम हो गया, पर मैं भी अपने पार्ट्स जो कवर करना चाहता था उसके एंड पे हूँ। बस एक दो चीज़ें और मैं शो करना चाहता हूँ आपको, यूटिलिटीज जो रेलेवेंट लगेंगी आपको। जैसे ये मैंने इंस्टीट्यूशनल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने अगेन कोई असाइनमेंट दिया, जैसा आपने कल भी सीख लिया था। अब जब मैं इंस्टीट्यूशनल आईडी से लॉगिन करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको भी आएगा ओरिजिनलिटी रिपोर्ट का ऑप्शन, और आप यू कैन सी द रिपोर्ट फॉर ईच गूगल डॉक योर स्टूडेंट टर्न्स इन, एंड स्टूडेंट कैन रन रिपोर्ट्स 3 टाइम बिफोर टर्निंग इन। तो एक तो दो बातें हैं टीचर्स, ये आप समझ लीजिए। एक क्लास के विद इन आप ये प्लेगरिज्म रिपोर्ट सिर्फ 3 असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। एक क्लास के विद इन आप सिर्फ 3 के लिए यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा के लिए नहीं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स भी अपना वर्क सबमिट करने के पहले प्लेगरिज्म चेक करवा सकता है। 3 टाइम स्टूडेंट भी अपना प्लेगरिज्म चेक कर सकता है बिफोर सबमिटिंग इट। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टीचर्स, जो कि हम लोग मिस आउट कर जाते हैं और जिसकी वजह से ये फंक्शनैलिटी काफ़ी यूज नहीं हो पाती है। वो क्राइटेरिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट काम नहीं आएगा, वो डॉक्यूमेंट गूगल डॉक ही होना चाहिए। तो कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, कुछ पे भी वो रन नहीं होगा। तो अभी मेरे पास कोई गूगल डॉक क्रिएटेड नहीं है जो मैं यहाँ पे सबमिट करूँ, और टाइम भी हो रहा है, पर आप इस बात को समझ जाइए। तो यहाँ पे आप इसे चेक प्लेगरिज्म पे टिक कर देंगे असाइनमेंट देते समय, और इसे सेव कर देंगे। तो आप जैसे स्टूडेंट वर्क मैंने कुछ सबमिट किया है, तो बस मैं इसे आपको ओपन करके शो करता हूँ। तो चूंकि मैंने इसे, आप देख पा रहे होंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सबमिट किया है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे ओपन विद गूगल डॉक्स कर दूं, और इसे मैं सेव कर लूं, गूगल डॉक्स में कई सारे फीचर्स हैं। अब आज तो टाइम नहीं है, शायद मैं थोड़ा सा कल बता पाऊँ आपको। तो मैं अगर इसे सेव कर लूं और सबमिट कर दूं, एक्चुअली ये मुझे बच्चे के एंड पे करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ओके, सो लेट मी स्किप अहेड, आप आइडिया समझ लीजिए। जैसे ही मैंने इसे गूगल डॉक्स के फॉर्म में सेव कर दिया और बच्चे गूगल डॉक के फॉर्म में इसे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे आपका, अगर कोई प्लेगरिज्म गूगल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो आपका इंटरफेस ऐसे ही होगा जैसा अभी आपको दिख रहा है। अगर गूगल कोई भी प्लेगरिज्म इस टॉपिक पे डिटेक्ट कर पाता है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 4 प्लेगराइज्ड पोर्शंस,
या 4 प्लेगराइज कंटेंट या 5 प्लेगराइज पोर्शन, और सारा कंटेंट आप लोग ने सबने प्लेगरिज्म रिपोर्ट देखा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अपने अपने रिसर्च में या पीएचडी एमफिल में देखते हैं कई बार, तो पोर्शंस हाईलाइटेड हो जाएंगे और उसमें आपको शो हो जाएगा कि वो किस वेबसाइट से कॉपीड है। पर अगेन मैं एक और बात वार्न कर रहा हूँ कि गूगल का जो प्लेगरिज्म है वो उतना अच्छा नहीं है जैसा टर्निटिन या आइथेंटिकेट का है, तो कई सारी चीजें हो सकता है मिस हो जाएंगी इस पे प्लेगरिज्म चेक पे। बट रफली अगर डायरेक्टली बच्चों ने कुछ इंटरनेट से कॉपी किया है तो वो आपका आ जाएगा। और आई थिंक लास्ट थिंग फॉर टुडे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है टाइम्ड टेस्ट। टाइम्ड टेस्ट या टाइम्ड असाइनमेंट तो कैसे लें, तो कल भी आपने गूगल फॉर्म से भी क्विज बनाना सीखा, पर उसे हम टाइम्ड कैसे कर दें कि वो एक टाइम में ही टाइम बाउंड हो जाए, क्योंकि टाइम बाउंड हमें लगता है कि हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन में, पर आप टाइम बाउंड भी कर सकते हैं। सो जस्ट लेट मी गेट टू एनी होम स्क्रीन। हाँ, सो आप जैसे इसमें देखिए, मैं कोई भी नया असाइनमेंट मान लीजिए दे रहा हूँ, तो मैं इसे टाइम्ड कैसे कर दूँ, तो टाइम्ड में आप देख पा रहे होंगे, हाँ सॉरी, इंस्ट्रक्शंस में जाके मैं इसे एडिट करता हूँ। तो टाइम्ड में आपको पता है टाइम्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो चीजें चाहिए, या तो हम लोग एक इमीडिएटली हम लोग एक मैं नया असाइनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारा क्लास वर्क में जाके क्रिएट में रीयूज पोस्ट, और इसमें मैं एक असाइनमेंट को रीयूज करता हूँ। हाँ, अब आप देखिए टाइम्ड का मतलब क्या है, एक स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए जो हमारे एग्जाम्स में होता है और एंडिंग टाइम होना चाहिए। स्टार्टिंग टाइम कैसे सेट करेंगे, स्टार्टिंग टाइम सेट करेंगे आप बाय असाइनिंग, या तो आप अभी करना चाहते हैं टेस्ट, आपने पहले ही अनाउंस कर लिया है, पोस्ट में डाल दिया है कि इस टाइम पे टेस्ट होगा, तो आप अभी असाइन कर दीजिए और स्टार्टिंग टाइम सेट कर दीजिए। और अदरवाइज अगेन आप एडवांस में ही सेट करना चाहते हैं तो स्केड्यूल कर दीजिए, तो असाइन कर देंगे तो अभी, स्केड्यूल कर देंगे तो बाद में, तो दोनों ही तरीके से आपका स्टार्टिंग टाइम फिक्स हो जाएगा। और जैसे ही आप ड्यू डेट एंड टाइम सेट करेंगे तो आपका एंडिंग टाइम एंडिंग डेट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद भी बच्चे सबमिट कर पाएंगे, बट आप ये क्लियरली अपने एंड पे डिस्क्रिप्शन कॉल ले सकते हैं कि इस टाइम के बियॉन्ड सबमिटेड असाइनमेंट्स आपका सबमिटेड भी होगा तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा एज अ टीचर। तो इस तरह से आप असाइन या स्केड्यूल करके बिगिनिंग का टाइम सेट करेंगे और साइमल्टेनियसली आपको ड्यू का टाइम सेट करके एंडिंग टाइम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड आई थिंक ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट्स